Now, see, in the the last class, we had done questions where the angle of trigonometric functions was positive. Now, there are questions where you'll get a situation where the angle of trigonometric function will be negative as well. Okay, so in order to deal with these type of questions, I must give you first formula. So everyone write down the formula first, and the derivation of the formula will be explained to you when I'll teach you the derivation of the part which is still left, that is y in the first quadrant, all the functions are positive, y in the second quadrant, sine and cosec is positive, y in the third quadrant, tan and cot is positive, other things are negative. See, ये चीज मैंने derivation नहीं बताया, just मैंने बता दिया कि देखो ऐसा होता है, but क्यों होता है I have not explained. So along with today's formula and that part, quadrant wala part, both these things I'll explain in a class. So today I'm just giving you the formula, write down and let us use it first. Okay, so let us first write down the formula. Let us all write down the formula and use this formula first. So the formula is sine of minus theta is minus sine theta. Number 2, cos of minus theta is equal to cos theta. Tan of minus theta is minus tan theta. Cosec of minus theta is minus cosec theta. Sec of minus theta is sec theta, and last, cot of minus theta is minus cot theta. See, as in the first class I had explained you about trigonometric functions, that trigonometric functions are never in product form with its angle. Means they are never treated as that sine into theta is equal to sine theta. It is treated as a single entity where sine theta makes a complete mathematical unit, where sine and theta, they are not two different things. This I have already explained. So according to this, please make sure that we are not multiplying sine and minus theta and it is becoming minus sine theta. We are not multiplying. Please keep in mind everyone this part. It is the derivation which I'll show you later on. So please don't think this way that we are multiplying sine with minus theta and it is becoming minus sine theta. So in this way, the logic, if this logic is applied, थोड़ी ना यहाँ पे cos into minus theta हो जाएगा minus cos theta, नहीं हो रहा है ना. तो ये लॉजिक कुछ और है. पहला बात मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी फंक्शन एंगल के साथ ये पूरा एक चीज माना जाता है. फंक्शन का नाम और एंगल को अलग अलग चीज नहीं माना जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, राइट. तो अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला को याद रखने का बहुत सिंपल तरीका ये है कि सिर्फ दो एक्सेप्शनल केस है, एक cos और दूसरा sec फंक्शन. cos का अगर एंगल नेगेटिव होगा, cos of negative angle, that angle gets eliminated. Why? I said you once again, I'm saying once again that we'll see this later on, okay? And similarly, sec of minus theta is equal to sec theta. बाकी सारा में जो नेगेटिव एंगल है वो आगे मल्टीपल फॉर्म में आ जाता है. देखो आगे आ जाता है प्रोडक्ट फॉर्म. Is this clear? So we find that sine of minus theta is same as minus sine theta. Tan of minus theta is same as minus tan theta, but cos or sec में exceptional. So let us use this and do few more questions so that your concept is more clear. That is, let us first everyone copy down. Everyone copy down this. So let us take the first question, that is number 9 का number 3. So 9 का question number 3 देखना एक बार. It is tan of minus 120 degree. So the first and foremost thing which you have to understand here is that tan of minus theta is equal to minus tan theta. All right, check once everyone. Tan of minus theta is what? Minus tan theta. इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा? Minus tan 120 degree. You can write down the formula which you have used. It is always advised that you better write down the formula which you are using. इससे फॉर्मूला याद भी हो जाएगा. और दूसरा चीज ये है कि जब उसको तुम लोग दोबारा देखोगे तो फॉर्मूला तुमको स्टेप्स भी समझ में आएगा कि तुमने ये स्टेप क्यों लिखा है. Okay, you're writing because tan of minus theta is minus tan theta. Next, now we know that किसी भी trigonometric functions का अगर एंगल 90 डिग्री से मोर है, ज्यादा है, ग्रेटर है, तो हम लोग वो स्टेप्स अप्लाई करते हैं. कौन से स्टेप्स है? 3 स्टेप्स में सॉल्व करते हैं. What is the first step? First step is expressing the angle in the form n into 90 plus minus 5.
So if you express 120 in the form n into 90 plus minus 5, it is very much clear that we can write 120 as 1 into 90 degree, which is 90 degree, plus how much is equal to 120? It is clearly 30 degree. All right. So first step is over. Second step. What is the second step? Second step is determining the quadrant. If you determine the quadrant part, you're finding that 1 into 90 plus 30. 1 into 90 plus 30 means second quadrant. Second quadrant में tan function क्या होता है? Given function क्या होता है? बताओ मुझे तुम लोग. क्या होता है? Negative. Now be careful everyone here. This is very important line. Now there are many students who are thinking that as in the second quadrant tan function is negative. So we already have negative sign here. So why to give one more negative sign? Please make sure that this is negative sign which already exists here in the sum. ये negative sign already tan के आगे exist कर रहा है. ये negative sign वैसे का वैसे रह जाएगा. और मुझे एक और negative sign देना पड़ेगा because of the reason that in the second quadrant tan function is negative. Please note down. सेकेंड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो हम लोग को ब्रैकेट दे करके एक और नेगेटिव साइन देना पड़ेगा. ये मत सोचो कि नेगेटिव होता है तो नेगेटिव ऑलरेडी है ही, वो तो ऑलरेडी बाहर है. ठीक है. लेकिन अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करें, इसको एक्सक्लूसिवली इस पार्ट को देखें, ये पार्ट को अगर हम देखें तो ये तो सेकंड में लाई कर रहा है ना, और सेकंड में tan फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो मुझे एक और नेगेटिव साइन देना पड़ेगा बिकॉज़ ऑफ द क्वाड्रेंट का कांसेप्ट के हिसाब से. ऑलराइट एवरीवन, नेक्स्ट. Now this is odd or even? Tell me everyone. Odd, right? Now you know that when it is odd, then we change the given function to its equivalent complementary. And if it is even, then we keep same. Function जैसा है वैसे रख देते हैं हम लोग. लेकिन यहाँ पे अगर odd है तो हम change कर देंगे. तो change एक बात बताओ, tan change होके किस में बदल जाएगा बताओ? Cot में. Because the complementary of tan function is cot function, and vice versa. Complementary of sine function is not cosec, it is cos function and vice versa. Complementary of sec is what? Cosec, and cosec का sec होता है. ठीक है. तो मैंने odd है तो tan को cot में बदल दिया और लास्ट में 30 डिग्री लिख दिया यहाँ पे. तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि माइनस माइनस प्लस होता है एंड cot 30 डिग्री का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा? √3. So √3 is your answer. I hope it is clear to almost everyone. But still if you have doubt, no problem, you can unmute and clear your doubts. अगर तुमको कहीं भी कोई ऐसा अगर डाउट है तो ये कॉपी कर लेने के बाद everyone is going to try right now sum number. First of all you are going to try sum number 9 का 5, then 9 का number 8, then 9 का number 10. These are the three things you are going to try, everyone, and then we will see the shortcut using which we can determine the quadrant just by looking at this n into 90 plus 13, the plus 5. Okay, capital first. So everyone note down number 5. You can just check your answer. So it is cosec minus 690 degree. All right. So everyone note down. The first thing, as the angle is negative, we are going to apply the formula. Cosec minus theta is minus cosec theta. Next, as this angle is greater than 90, let us express in the form n into 90 plus, so 7 9 is 63 plus 60, 630 plus 60 is how much? 690. Then quadrant part 4 5 6 7. I think ये मैंने बहुत easily बता दिया था कैसे चेक किया जाता है. Plus 60 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया. फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है. ये ऑड है तो cosec sec में कन्वर्ट हो जाएगा. So minus minus is plus and the value of sec 60 degree is equal to how much? 2. Check once. Please check your answer. And question number 8 में sin minus 1230 degree है. 1230 degree negative. तो सबसे पहला चीज sin of minus theta is minus sin theta, the first line. Okay, next, as this angle is greater than 90, so we have to express in the form n into 90 plus minus 5. If you are not able to determine directly, एक बार में देख करके अगर तुम determine नहीं कर पा रहे हो कि कितना into 90 plus क्या होगा 1230, तो याद है मैंने बताया था, क्या बताया था बताओ तो कैसे करते हैं?
तो Yes, 10 डिवाइड करना नंबर को 90 डिग्री से इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, और डिवाइड करके हम लोग इजीली we can identify. So we find that 13 into 90 plus 60 degree is equal to 1230 degree. All right. अब देखो 13 into 90 का मतलब हो गया 4, दोबारा राउंड लगा 8, दोबारा राउंड लगा 12 हो गया, 12 बार यहाँ पे आया, तो 12 बार यहाँ पे आ गया, अगर उसके बाद तो 13 बार मतलब यहाँ पे आएगा, उसके बाद प्लस 60 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब मुझे नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं बनाना है, नेगेटिव बाहर आकर के पॉजिटिव साइन दे देना। देन व्हाट इज 13? 13 इज ऑड। ऑड है मतलब साइन को cos में चेंज करना, एंड द आंसर इज minus cos 60 which is minus half. Yes, everyone got the answer? Last one is number 10. 10 I hope that everyone is will be able to do, because 10 number में cos minus 2220 degree है. You know that cos of minus theta is how much? So cos theta. So it is simple as same as positive angle जो last time मैंने होमवर्क दिया था, और ये एंगल बहुत बड़ा है तो हम लोग एक बार में देख के नहीं बता पा रहे हैं कि कितना into 90 करने से होगा। So 24 into 90. तो ये हम लोग ने डिवाइड करके देखा, 24 into 90 plus how much? How much? 60. 60 डिग्री। तो 24 बार 90 मतलब क्या करना है? 24 बार 90 मतलब 6 कंप्लीट राउंड। 6 एक बार हो गया, दोबारा मतलब 8, 12, 16 मतलब सिंपल। 24 बार मतलब कितना राउंड हो गया? कि एक कंप्लीट राउंड मतलब कितना हो गया? 6 कंप्लीट राउंड। याद होगा लास्ट डे अपने लोगों ने देखा है ये चीज। तो 6 कंप्लीट राउंड मतलब यहाँ पे आ जाएगा। प्लस 60 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। इवन है, सो द आंसर इज हाफ। ऑलराइट, बट अब देख रहे, देखो अभी एक चीज क्या देख रहे हैं हम लोग कि इतना ये सब इतना लंबा क्वाड्रेंट का जो मेथड है डिटरमाइन करने में काफी टाइम लग रहा है। 26 बार होगा तो कितना होगा वो देख के हम लोग को थोड़ा टाइम लग रहा है। अब हम ऐसा तुम लोग को शॉर्टकट्स बताएंगे जिससे तुम एक बार में देख के क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर पाओ। सो नाउ आई वांट एवरीवन टू सी द नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू डिटरमाइन द क्वाड्रेंट जस्ट इन द लाइन। नोट डाउन। सो नाउ शो यू शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट to determine the quadrant. Let's start with few examples first. Listen here. Suppose we have 1 into 90 plus 20. Second example, let's say we have 2 into 90 plus 30 degree. Third example, 3 into 90 plus 40 degree. Last example, fourth example, 4 into 90 plus 10 degree, let's say. And then we have, let's say, 26 into 90 plus 6 degree, let's say. ध्यान से लिखो करके। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब tell me everyone कि 1 into 90 plus 20 कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ तो? Second. एक बार 90 plus 20 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। अब मैं तुम लोगों को तरीका बताता हूँ, सुनना एक बार। 1 into 90 plus 20 तुम अगर ध्यान से देखो तो सेकंड, ठीक है, सेकंड हुआ तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। बताओ तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? Second, third. थर्ड क्वाड्रेंट है। कैसे थर्ड है? 2 into 90, 2 into 90 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? Fourth. ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। First. क्वाड्रेंट। अब ध्यान से नोट करना, एक बार ध्यान से। Now see, it is observed that शॉर्टकट का जो मेथड है तुम लोग देख के ही ऑब्जर्व कर लेगा। क्या देखो, सुनना एक बार। शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए, शॉर्टकट मेथड के लिए सबसे पहला चीज ये जो प्लस जो लोग ये जो अक्यूट एंगल है ना वो हमेशा ऐड होना चाहिए, कभी बीच में माइनस नहीं होना चाहिए, ये हमेशा प्लस होना चाहिए। तो ये शॉर्टकट पहला बात है माइनस में काम नहीं करेगा। ये शॉर्टकट काम तभी करेगा जब यहाँ पे प्लस होगा। तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए ये जो n है वो क्या होना पड़ेगा? 4 से लेस होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? 4 से लेस, 4 से ज्यादा नहीं। 4 या 4 से ज्यादा होगा काम नहीं करेगा। तो देखते एक बार ध्यान से। पहले 1 है तो 1 plus 1 देखो 2 हो गया। ये 2 है तो क्या हो गया? ये 3, मतलब 1 ऐड कर दिया इसमें, इसमें भी 1 ऐड कर दिया। ये 3 है तो क्या है? ये 4, 1 ऐड कर दिया। तो बात ये है, तो फिर ये शॉर्टकट किस किस्म का है? इतना छोटा सा नंबर्स के लिए तो देख के कोई भी डिटरमाइन कर सकता है। और मैंने बोला कि प्लस होगा तब लगाना
और अगर ये वैल्यू n4 से कम होगा तब अप्लाई करना है। तो शॉर्टकट का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो 24 हुआ, 26 हुआ, 31 हुआ, 34 हुआ, तो इसमें कैसे काम करेगा, तो ध्यान से देखिए। अगर मान लो n का वैल्यू, अगर n का वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा है, n का वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा है, तो फिर ये शॉर्टकट कैसे काम करेगा, n को क्या करना, 4 से डिवाइड कर देना, 4 से डिवाइड करना। रिमाइंडर क्या बचा बताओ तो, क्या बचा रिमाइंडर, 0। जो भी रिमाइंडर है रिमाइंडर में 1 ऐड कर देना, 1 ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारा क्वाड्रेंट होगा, सीधा सा बात। अगर 4 से कम है तो 1 ऐड कर देना, अगर 4 या 4 से ज्यादा है तो उस n को 4 से डिवाइड कर देना और रिमाइंडर जो आएगा उसमें 1 ऐड कर देना। अब बताओ मुझे 26 है, तुम लोग लंबा मेथड में जाओ, लंबा वाला मेथड, मतलब जो इतना वो जो ऐसे बना करके करते हैं। 26 बार मतलब कितना हो गया, पहले हम देखते हैं 24, why 24, you know why 24, इसीलिए बिकॉज 26 के क्लोजेस्ट छोटा नंबर 24 है जो 4 से डिविजिबल है, राइट। अब देखा जाए तो 24 का मतलब कितना कंप्लीट राउंड हुआ बताओ तो, 6 कंप्लीट राउंड। तो 6 कंप्लीट राउंड मतलब 1 2 वापस से यहीं पे आ जाएगा, 24 हो गया, 24 हो गया, उसके बाद 25 26 हो गया, 26 into 90 plus 6 मतलब ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। अब हम इसका शॉर्टकट लगाते हैं, 26 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना है रिमाइंडर बताओ, 2 plus 1 कितना होता है, सर 3। वो तो थर्ड क्वाड्रेंट काम कर रहा है, तो ये कर रहा है तो काम, तो ये काम करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया है, वो याद रखो। क्या क्राइटेरिया, हमेशा प्लस होना चाहिए, एक्यूट एंगल हमेशा प्लस फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर ये वैल्यू 4 से कम है तब तो डायरेक्ट हो गया, 4 या 4 से ज्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उस वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दो और जो रिमाइंडर बचता है उसमें 1 ऐड कर, रिमाइंडर प्लस 1 इज द क्वाड्रेंट, दैट्स ऑल। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट क्लियर, सबके लिए क्लियर हुआ। तो ये मैंने पहले इसीलिए बताया था क्योंकि अब ज्यादा समझ में आएगा तुम लोगों को, कांसेप्ट भी समझ में आ गया, और कोई भी तुमको शॉर्टकट पूछे एक लाइन में तुम बता पाओ, तो एक बार कॉपी कर लो फटाफट से। So everyone note down. Suppose you have now, let's say 57 into 90 plus 10 degree. Now see, अगर वो पहले वाला मेथड अगर हमको पता तुम लोग को रहता है, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं मिल पाता, थोड़ा टाइम लग जाता है। अब ये जो मैंने शॉर्टकट बताया बहुत आसान से आंसर बताओ तो क्या है सर सेकंड क्वाड्रेंट। क्योंकि 57 को 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। रिमाइंडर 1 आएगा, अब उसके बाद 1 में 1 ऐड कर दो, सो दिस इज सेकंड पार्ट। ओके, अब देखो ध्यान से, ये तो हो गया पार्ट, लेकिन अब आगे देखना एक बार, इस पीडीएफ में 9 नंबर तो अब सबका हो जाएगा, तुम एकदम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके भी कर पाओगे। अब 10 नंबर का देखना, ये जो एंगल से ये रेडियन में है, ऑलराइट, ये जो एंगल से ये क्या है, रेडियन में है, तो अब ये रेडियन में कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट अस सी नाउ कि रेडियन में कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहले हम लंबा मेथड बताएंगे, फिर शॉर्टकट बताएंगे, तो ज्यादा दिमाग में जाएगा। देखो ध्यान से, देखो मेथड लंबा तो ये है कि तुम लोग को ये ऑलरेडी पता है पहले, क्यों कैसे पता है, अगर मान लो ये एंगल रेडियन में है तो क्या दिक्कत है, हम लोग उसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं कि, अगर ये एंगल रेडियन में है तो हम लोग उसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है। एक्चुअली इस मेथड में प्रॉब्लम क्या है कि डिग्री में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद n into 90 के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, फिर बहुत लंबा तरीके से सॉल्व करो, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो पहले तो एक लंबा मेथड से बताएंगे और तुम लोग को देंगे सॉल्व करने के, फिर हम लोग शॉर्टकट देखेंगे, तो ध्यान देना एक बार। सो एक बात बताओ तो 25 पाई बाय 3 को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो क्या होगा डिग्री में कन्वर्जन इसका, इट्स 1500 डिग्री, ठीक है, क्या हो गया 1500 डिग्री हो गया। अब ये एंगल तो 90 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को n into 90 के फॉर्म में पहले एक्सप्रेस कर देंगे। तो 1500 डिग्री को अगर हम n into 90 के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, so we are finding that it is 16 into 90 degree plus 60 degree, all right, 16 into 90 plus 60 degree मतलब क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, फटाफट बताओ। फर्स्ट सिंपल, 16 डिवाइड बाय 4 0 0 रिमाइंडर प्लस 1 क्या हो गया 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, इवन है तो साइन रह जाएगा 60 डिग्री। तो ऐसा नहीं कि आंसर नहीं मिल पाएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा टाइम लग जाएगा, 1 मार्क्स में इतना टाइम देना मुझे ठीक नहीं लग रहा है।
बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मेथड देखेंगे, डोंट वरी, कि कैसे रेडियन में रख के सॉल्व करते हैं। बट इससे पहले सब कोई ये कॉपी करके सम जो बोर्ड पे मैंने किया है, ये सम नंबर 10 का 1 है, 10 का सबको नंबर 2 करो। एवरीवन राइट नाउ सॉल्व 10 का नंबर 2। क्लियर? कैन यू सी द पीडीएफ? 10 का नंबर 2, हरिया। So I think the answer of cos 41 pi by 4 is 1 by root 2. Everyone got the same answer? So Yes, sir. now let us Yes. see ki how to solve trigonometric functions of angles if angle is greater than 90 and is in radian. जैसे इतना बड़ा बड़ा एंगल को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ रहा है डिग्री में और फिर सॉल्व करना पड़ रहा है, अब हम लोग रेडियन में रख के सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी। सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। नाउ लिसन हियर एवरीवन। So let us see a few examples. First, let me just everyone concentrate जो मैं जो भी बोल कर रहा हूँ, क्या करें? Let's say pi plus theta. Let's say 2 pi plus theta, 3 pi plus theta, 4 pi plus theta, 5 pi plus theta and 6 pi plus theta. Let's see total ना एग्जांपल्स मैंने लिखे। सब कुछ बढ़िया से ऑब्जर्व करना, ठीक है? मेरा पहले सबसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे रख, कोई कॉपी मत कर, because as I am going to give you time to copy, no one must first look here and there and please concentrate here. So everyone tell me pi plus theta का मतलब हो गया 180 डिग्री प्लस थीटा, एंड 180 डिग्री प्लस थीटा का मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? इट इज 2 into 90 डिग्री प्लस थीटा। यस एवरीवन? सो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पाई प्लस थीटा मींस 2 into 90 प्लस थीटा? ऑलराइट, नाउ टेल मी एवरीवन, अगर पाई प्लस थीटा का मतलब 2 into 90 प्लस थीटा है तो 2 पाई प्लस थीटा का मतलब क्या है? 4 pi plus 360 डिग्री। theta. यस, वेरी सिंपल। पहले एक बार हम अगर थोड़ा सा लंबा तरीके से जाए तो पाई को 180 लिखा तो 2 पाई को 360 डिग्री और 360 को 4 into 90। लेकिन अब एक चीज तो क्लियर हो जा रहा है, देखो एक होता है पैटर्न। अपना ह्यूमन माइंड इतना एडवांस है कि हम लोग अगर दो तीन चीज को अगर देखें तो चौथा चीज अपने आप समझ में आता है कि पैटर्न क्या है। तो पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ तो, कि अगर यहाँ पे पाई प्लस थीटा है तो 2 into 90 प्लस थीटा हो गया, तो 2 पाई के लिए क्या हो जाएगा? 2 पाई के लिए क्या हो जाएगा? 2 to 4 into 90। तो बताओ तो एक बार 3 पाई के लिए क्या हो जाएगा बताओ? 6 into 90 plus 6 into 90। वेरी गुड, समझ में? तो ये हम लोग देख रहे हैं कि बहुत आसानी से हम लोग ये चीज बोल पा रहे हैं। यहाँ पे 8 into 90, यहाँ पे 10 into 90 और यहाँ पे हम देख रहे हैं 12 into 90। अब एक बात बताओ तुम लोग, सबसे पहला चीज तुम लोग ये आइडेंटिफाई करो कि 2 into 90 में क्वाड्रेंट कौन सा है? बताओ तो, विच क्वाड्रेंट? फटाफट वो शॉर्टकट वाला काम करना चाहिए। शॉर्टकट पता है ना तुम लोगों को? 2 into 90 मतलब सेकंड। आर यू श्योर? आंसर सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड। सेकंड। अरे ये थीटा है, ये 0 डिग्री नहीं है, थीटा है। थीटा मतलब कोई भी एक्यूट एंगल, ऐसे हम लोग अज्यूम करते हैं। तो 2 into 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। सिंपल, 2 plus 1 3। ये कौन सा है? फर्स्ट। 4 divided by 4 0, रिमाइंडर 0, 0 plus 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। ये First. ये थर्ड Third. और ये क्या है? फर्स्ट। अब एक चीज नोट करना सबको, जब भी देखो पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब मैं बोल सकता हूँ 1 into पाई, जैसे 2 पाई 1 पाई। एक चीज नोट करना सबको, जब भी ऑड पाई होगा, ऑड पाई प्लस थीटा, देखो एक बार ध्यान से, ऑड पाई प्लस थीटा वो हमेशा कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है? चेक करो। ऑड इनटू पाई, पाई का मतलब क्या हो गया? 1 into पाई। 3 पाई मतलब 3 into पाई मतलब ऑड इनटू पाई। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑड नंबर इनटू पाई, ऑड इनटू पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा? देखो तो एक बार, ऑड पाई
प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? यस। और क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इवन पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, चेक करेंगे 4 पाई इवन पाई है, 2 पाई इवन पाई है, 6 पाई इवन पाई है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इवन पाई प्लस थीटा मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट? यस एवरीवन। नाउ ये तो हो गया क्वाड्रेंट वाला पार्ट। अब एक बात बताओ तुम मुझे, क्वाड्रेंट के अलावा जो लास्ट जो स्टेप्स होता है ना, जो 3 स्टेप्स मैंने जो दिया था, एक बात बताओ तो, तीसरा स्टेप में फंक्शन को चेंज करने के लिए कब कहा जाता है बताओ तो, कि जो भी गिवन फंक्शन उसको चेंज कर दो, कब होता है चेंज बताओ तो? जब n odd होता है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, जब n ऑड होता है तभी तो चेंज करते हैं ना। अब एक बात बताओ, किसी भी पाई में अगर कॉस हो, साइन हो, टैन हो, कॉट हो, सेक, कॉस है, कुछ भी हो, तुम बताओ तो एक बार, किसी भी पाई में पाई ऑड हो या इवन हो, ऑड हो या इवन हो, एक बात बताओ, कॉस के लिए, साइन के लिए, टैन के लिए जो भी फंक्शन होगा वहां पे, मतलब इसके आगे जो भी फंक्शन होगा, क्या वो चेंज होगा या सेम रहेगा बताओ? सेम रहेगा। डू यू एग्री वन? मतलब जब भी पाई प्लस करेंगे हम लोग, 2 पाई प्लस करेंगे, 3 पाई प्लस करेंगे, जो भी फंक्शन होगा, साइन होगा तो आंसर साइन रहेगा, कॉस होगा तो आंसर कॉस रहेगा, टैन होगा तो आंसर टैन रहेगा, कॉट होगा तो आंसर कॉट रहेगा। ये चीज तो क्लियर हो गया ना? बिकॉज इसका रीजन क्या है, बिकॉज सारे केस में वो 90 का इवन मल्टीपल है। देखो सारे केस में 90 के आगे इवन है। इवन है मतलब जो भी हो, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, जो भी हो, वो हमेशा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। क्लियर? और अब देखो एक बार, अब हम लोग यहां से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, ये ध्यान देना एक बार, ध्यान देना एक बार सबको, कि जब भी साइन इवन पाई, देखो इवन पाई प्लस थीटा हो, जैसे साइन पाई प्लस थीटा या फिर कॉस पाई प्लस थीटा, साइन ही नहीं कोई भी फंक्शन प्लस थीटा, या फिर टैन पाई प्लस थीटा हो, तो मतलब एक चीज, पहले हम इतना अलग अलग ना लिख के डायरेक्ट ये लिखते हैं। एक बात बताओ तुम लोग मुझे, साइन ये हो या कॉस हो या जो भी फंक्शन हो, ठीक है, इवन पाई प्लस थीटा में आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है? अगर मान लो यहाँ पे इवन पाई है प्लस थीटा है, उसका आंसर हमेशा क्या होगा, कोई बता सकते हैं? लेट मी हियर फ्रॉम यू। पॉजिटिव। मतलब वो देखो हमेशा क्या होगा आंसर? साइन थीटा। क्यों होगा साइन थीटा? बिकॉज यहाँ पे अगर साइन हो, या फिर यहाँ पे कॉस हो, या फिर यहाँ पे टैन हो, या फिर यहाँ पे कॉट, या फिर सेक, या फिर कॉसेक, कोई भी फंक्शन हो, वी आर फाइंडिंग दैट कि इवन पाई प्लस थीटा तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा फंक्शंस पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, हम लोग को सिर्फ ध्यान क्या चीज का रखना है? हम लोग को ध्यान रखना है सिर्फ साइन का। तो साइन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका पॉजिटिव ही होगा। और दूसरा चीज है इवन पाई है, इवन पाई में भी बात छोड़ो, इवन पाई हो या ऑड पाई, इवन पाई हो, ऑड पाई हो या इवन पाई, हमेशा जो ये जो मल्टीपल ऑफ 90 जो होगा, n जो होगा, वो हमेशा क्या होगा? इवन होगा। उसमें हमेशा फंक्शन क्या रहता है? सेम। मतलब एक चीज हम लोग क्या देख रहे हैं क्लियरली, लिसन हियर, एक चीज हम लोग क्या देख रहे हैं क्लियरली, कि जब भी हम लोग पाई के टर्म्स में सॉल्व कर रहे हैं, पाई के टर्म्स में जब भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो पता है चिंता सिर्फ एक ही बात क्या है। वो एक बात क्या है बताओ तो, कि साइन क्या होगा। क्यों ऐसा एक बात का चिंता है कि साइन क्या होगा? क्योंकि तुम ऑड ले लो या इवन लो, इफ यू टेक ऑड और इवन, इफ यू टेक ऑड और इवन, यू नो दैट विल बी मल्टीपल ऑफ इवन ओनली। 90 का वो क्या होगा? इवन मल्टीपल ही होगा। देखो 90 के आगे क्या होगा? इवन मल्टीपल ही होगा। मतलब फंक्शन तो सेम ही रहेगा, सिर्फ हमको क्वाड्रेंट वाला पार्ट चेक करना है। तो क्वाड्रेंट वाला पार्ट चेक करें तो अगर मान लो इवन पाई प्लस थीटा होगा तो वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए वो सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब तुमसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 2 पाई प्लस थीटा, व्हाट विल बी योर आंसर? साइन थीटा। पाई। देखो एक चीज तो है, साइन का साइन ही रहेगा, थीटा थीटा ही रहेगा। 2 पाई प्लस थीटा मतलब इवन पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें पॉजिटिव होगा। ठीक है, सब कुछ समझ में आई वाला बात? ठीक है। अब अगर हम तुमसे पूछे ऑड पाई प्लस थीटा, तो ध्यान देना, ऑड पाई प्लस थीटा वाला का ध्यान देना। लेट्स सपोज साइन 3 पाई प्लस थीटा। ना एक चीज तो क्लियर है कि 3 पाई प्लस थीटा में 3 जो पाई में तुम्हारा जो आंसर होगा, मतलब वो 6 का मल्टीपल होगा यहाँ पे एंगल, तो 6 का मल्टीपल में साइन साइन ही रहेगा। मतलब जो फंक्शन है वो वैसे ही रहेगा, थीटा थीटा ही रहेगा। अब हमको सिर्फ क्वाड्रेंट वाला पार्ट चेक करना है। मतलब पाई में रख के फायदा क्या है कि फंक्शन और एंगल प्लस लिख दो और क्वाड्रेंट चेक कर दो। अब बताओ मुझे ऑड पाई प्लस थीटा, ऑड पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बताओ तो? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है?
सिंपल। अब तुमसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 5 पाई प्लस थीटा, अब तुमको इतना चक्कर लगाने वाला वो नहीं Tan पड़ेगा, ऐसे सीधा सा पहले tan थीटा लिख दो। अब देख लो कि ऑड पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव। आई थिंक समझ में आ गया सबको, कोई लॉजिक है? ठीक है, तो ये फायदा है तुम्हारा, अगर हम लोग एंगल को रेडियन में रख के करते हैं तो ये फायदा है चीज, बस क्वाड्रेंट का आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब देखो एक बात, लेट्स सी अगर माइनस होगा बीच में तो क्या होगा? ठीक है, माइनस अगर बीच में होता है तो क्या होगा? सो एक बार सबसे पहले ये कॉपी करो, एक बार ये वाला पार्ट कॉपी करो सबसे पहले। Now let us say, for example, you have pi minus theta, 2 pi minus theta, 3 pi minus theta, 4 pi minus theta। पहले क्वाड्रेंट वाला पार्ट देख लेते हैं, ठीक है? 6, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, everywhere there will be minus, everywhere there will be minus। ठीक है, now everyone tell me कि जब भी 2 into 90 माइनस थीटा है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सर सेकंड। अब बताना एक बार, 6 into 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? चेक करना। सर सेकंड। 4 5 6 समझ में आया? तो 4 5 6 उसमें माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। एक चीज यहाँ पे तुम देखना कि जब भी ऑड पाई माइनस थीटा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ऑड पाई माइनस थीटा सेकंड, ऑड पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। और एक चीज तुम देख लेना कि इवन पाई माइनस थीटा, चेक कर लो एक बार, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। यू कैन टेक टाइम एंड यू कैन चेक वंस। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर मान लो ऑड पाई, ठीक है, माइनस थीटा होगा तो सेकंड, ऑड पाई माइनस थीटा होगा तो सेकंड, ऑड पाई प्लस सॉरी इवन पाई माइनस थीटा होगा तो फोर्थ। ठीक है, यहां से देख सकते हैं इवन पाई है, ऑड पाई है, सॉरी 1 into पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। 3 into पाई मतलब ऑड पाई, तुम चेक कर लो 6 into 90 माइनस थीटा, तो 6 into 90 मतलब हो गया 4 5 6 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो यू आर फाइंडिंग दैट ऑड पाई माइनस थीटा विल बी ऑलवेज सेकंड, check with even pi minus theta, that will be always fourth quadrant. Now there are students who are thinking how to use this. I'll tell you how to use this, don't worry. First मैं जो बोल रहा हूँ उस पे ध्यान से कंसंट्रेट। देखो एक चीज हो गया कि ऑड पाई माइनस थीटा हो, इवन पाई प्लस थीटा हो, ऑड पाई प्लस थीटा हो या इवन पाई माइनस थीटा हो, चारों में अगर हम देखें तो सारे केस में वो 90 का इवन मल्टीपल ही है। देखो 90 के जो आगे जो n है सारा केस में इवन होगा, एक चीज तो क्लियर होगा। मतलब अगर हम देखें, जैसे देखो ध्यान से एक बार कि अगर मान लो तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 3, लिसन नहीं देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 3। देखो हमको इसमें एक चीज तो क्लियर है कि आंसर साइन ही रहेगा, क्योंकि 3 पाई बोलो या 2 पाई बोलो या 1 पाई बोलो या 4 पाई या 5 पाई, वो 90 के आगे जो n का वैल्यू होगा दैट विल बी ऑलवेज इवन, और इवन होने से फंक्शन सेम का सेम ही रहता है। मतलब साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा, समझ में? और लास्ट में एंगल पाई बाई 3 लिख देंगे। अब बस यहाँ पे क्वाड्रेंट चेक करना होगा। तुम बताओ मुझे ऑड पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? बताओ। माइनस। ऑड पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? क्वाड्रेंट। Third। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। एक लाइन में आंसर आ गया, दैट इज माइनस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 3? मतलब साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। समझ में आया ना? साइन देखो पाई बाई 3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2 हुआ ना? अब देखो इसको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे मान लो 10 का 1 नंबर है साइन 25 पाई बाई 3, तो अपने लोगों ने टाइम कितना वेस्ट किया था देखो तो, डिग्री में बदल के उसके बाद सॉल्व किया था। हम इसको कितने इजीली तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं देखो। तो एक बात बताओ तो इसको इवन पाई प्लस थीटा या इवन पाई माइनस थीटा या ऑड पाई प्लस थीटा या जो भी इस फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो? लिख सकते हैं, चेक करो। 3 8 जा 24, देखो 3 8 जा 24, 24 प्लस 24 पाई प्लस पाई कितना होता है? 25 पाई। मैं तुमको तरीका भी सिखा देता हूं, सुनना है।
एक बात बताओ, 5/2 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखो। देखो 5/2 को अगर तुम मिक्स फ्रैक्शन लिखोगे ऐसे होगा तो पता है हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब ये भी फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो होता क्या है, देखो तो 2 2 जा 4, नोट डाउन 5/2 को मिक्स फ्रैक्शन लिखा, ये काम कैसे करता है, 2 2 जा 4, 4 + 1, यहाँ पे तो वही काम कर रहा है ना, 2 + 1/2 चेक कर, 2 2 जा 4 + 1 हुआ कि नहीं, काम किया कि नहीं। तो क्या करना तुम लोग देखो, 25 पाई को 3 से डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में दिमाग में रिप्रेजेंट करना, पाई छोड़ दो, 25/3 को डिवाइड करो। तो 25/3 को अगर हम डिवाइड करें, इसका मिक्स फ्रैक्शन ये हुआ कि नहीं बताओ। इसको हम लिख सकते हैं 8 + 1/3, लिख सकते हैं ना 8 + 1/3, यस सर। 8 पाई + π/3, समझ में आया बात, 8 पाई + π/3। तो तुमको हम हर चीज का टेक्निक बता रहे हैं, बस आराम से फॉलो करते जाओ और ये चीज को अप्लाई करो। देखो आज ही तुम लोगों को घर पे जाकर के इस चीज को अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। देखो एक तरीका होता है रट्टा वाला, रट्टा मारने वाला मतलब हम बता दिए ऐसे करो और करते रहो उस तरीके से, वो लॉन्ग लास्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, हर चीज का कंसेप्ट के साथ बता रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम मतलब घर पे तुमको जाकर के उसको समझना पड़ेगा। एक बार समझ गया इतना परफेक्शन में चला जाएगा तुम्हारे, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सो आई थिंक समझ में आ गया। अब बताओ मुझे 8 पाई + π/3 हो गया। अब तुमको पता है कि पाई वाला सम में हमको सिर्फ क्वाड्रेंट चेक करना होता है, मतलब हमको फंक्शन और एंगल तो लिख देना होता है कि नहीं। अब सिर्फ क्वाड्रेंट चेक करना होगा। तो बताओ तो एक बार, इवन पाई + π/3 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। इवन पाई + π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 60, √3/2। आया कि नहीं, एक लाइन में आंसर आया कि नहीं। देखो हम लोग और अप्लाई करते हैं ये सब चीज। नंबर 2 में देखो कितना लंबा हो गया था तुम लोग का। अब देखो एक लाइन में कैसे सॉल्व हो जाता है। तो चलो ये वाला टेक्निक अप्लाई करेगा, ये टेक्निक जो मैंने मिक्स फ्रैक्शन में बोला था। तुम पाई को छोड़ देगा। अब बताओ मुझे 41/4 को अगर हम 10/4 हुआ कि नहीं, तो बस अब करना क्या है, 10 पाई + π/4 लिख देना। तो यहाँ पे लिख दो, अभी क्लियर हो जाएगा। 10 पाई + π/4 और चेक भी कर दो, 4 10 जा 40, पाई + पाई कितना हो गया, 41 पाई। कहीं करेक्ट नहीं। अब देखो तुमको cos लिख देना है, π/4 लिख देना है, और क्वाड्रेंट के लिए क्या चेक करना है कि ये इवन पाई + थीटा है। इवन पाई + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, cos ही क्या, सब कुछ ही पॉजिटिव। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो है कि नहीं इजी मेथड, बताओ ये। बस तुमको यहाँ पे क्या समझना है, तुमको बेसिकली तुमको ये सब चीज समझना है कि ये बन कैसे रहा, मतलब ये जो कंसेप्ट जो है ये आ कहां से रहा है। देखा जाए तो ये कंसेप्ट जो है कहां से आ रहा है, जिसका कंसेप्ट n × 90 वाला क्लियर नहीं है, ये उसको समझ में नहीं आएगा, उसको रट्टा मारना पड़ेगा। तुम लोग को बुक्स में देखना ये सब चीज क्या दिया रहता है। तुम लोग को हो सकता है स्कूल में ऐसे कराया गया होगा, 2 × 360 + थीटा, 2 × 90 3 × 180 + थीटा, इस फॉर्म में लिख के कराया गया होगा, कराया गया ना 3 × 180 + थीटा, ये इस फॉर्म में करके। तो तुम लोग वही चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तुम लोग को थोड़ा लेट बता रहे हैं। आई अंडरस्टैंडिंग। पहले हम क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट बता रहे हैं, कंसेप्ट के बाद हम उस कंसेप्ट को यूज करके डिराइव करके हम तुम लोग को समझा रहे हैं कि देखो कैसे है। आई थिंक इट इज क्लियर एवरीवन, क्लियर टू एवरीवन। आई वांट एवरीवन टू सॉल्व एक और मैं सॉल्व करता हूं, फिर तुम लोगों को मैं दूंगा क्रेडिट, ठीक है। एक और जैसे नंबर सर आप एक नेगेटिव में सॉल्व कर दो ना। वही मैं नेगेटिव में सॉल्व कर रहा हूं, तभी ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहला चीज मुझे एक बात बताओ, tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, पहले बताओ तुम। माइनस tan इज माइनस tan थीटा होता है। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या होगा बताओ तुम, बताओ तुम लोग बताओ, मैं नहीं बताऊं, तुम लोग बताओ। 5 + पाई 5 पाई + π/3। सिंपल 5 वही हुआ, 5 + 1/3 बहुत लोग बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वही बात हुआ, पाई में लिख दो उसको, तो 5 पाई + π/3 हो गया। अब देखो एक चीज, माइनस तो ऑलरेडी है, एक चीज देखो, tan का tan रहेगा, π/3 का π/3 लिख दिया। अब क्वाड्रेंट चेक करो, ऑड पाई + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, चेक करो, चेक करो। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव मत कर देना, पता है ना क्यों, पता है ना, वही सेम लॉजिक जो हम लोगों ने n × 90 में देखा। तो ये हो गया माइनस tan 60 tan π/3, एंड व्हाट इज द आंसर, इट इज माइनस। So I think it is clear now. With this 3 example, now it is clear. Now I want everyone right now to solve question number 4.
10 का नंबर 4 इस तरीके से सॉल्व करके दिखाएगा तुम लोग, ठीक है। 10 का 4 क्या है, cot 29 pi by 4। तो सब कुछ सॉल्व करो। So I'm ending today's class and we'll meet in the next class. I hope everyone is going to submit homework today only, जो मैं आज दे रहा हूँ। So आज के लिए इतना ही। You can now log out. Thank you. Thank you, sir. Thank you.